حادثات پر بھروسہ نہیں رکھتی، میں الہی رہائی پر اعتقاد رکھتی ہوں۔ میں نے ایک متقی مسلمان گھرانے میں جنم لیا اور خدا کے پاس میرے لیے منصوبے تھے، شاندار منصوبے۔ میں موت کے دہانے پر تھی، میں خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یسوع نے خود کو مجھ پر ظاہر کیا اور اس نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ اعتقاد رکھیں تو خدا آپ کو نئی زندگی بخشے گا۔ یسوع ایک حقیقت ہے، وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے، وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے۔ سنیں، میں مسلم پس منظر سے آئی ہوں۔ میں چرچ نہیں گئی اور میں ہمیشہ بڑے لاف سے یہ کہتی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ کسی قسم کی لاف زنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن یہ میرے لیے بھلا ہوا کہ چرچ نہ جا سکی، اور پھر چرچ گئی اور الہی تعلیم پائی، اور پھر جوں میں خدا کو ڈھونڈتی گئی، خدا اتنی ہی زیادہ میری زندگی میں اپنی سمجھ اور مکاشفہ میری زندگی میں انڈیلتا چلا گیا۔ میں نے کچھ موضوعات پر خدا سے کشتی لڑی، کیونکہ میں ایک چرچ جاتی وہاں کچھ کہا جاتا اور دوسرے میں مناد کو کچھ اور کہتے سنتی۔ جب آپ بھوکے ہوں، ناتواں سے ہوں تو آپ کچھ بھی کھا لیتے ہیں۔ جب میں یسوع کے پاس آئی تو میں بھوکی اور ناتواں سے تھی، میں ایک نومولود بچہ تھی، اور کوئی بھی مجھے دودھ دیتا میں پی لیتی، کوئی بھی مجھے سیکھنے یا کھانے کو کچھ دیتا میں اسے لیتی اور کھا لیتی۔ لیکن بعد میں چننا شروع ہو گئی۔ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے سامنے ضیافت ہے تو آپ چن کر کھاتے ہیں۔ اگر مسیح کے ساتھ چلنے کی بات ہو تو یہ بھلا ہوتا ہے، وگرنہ یہ ایک بری بات ہے، کیونکہ آپ ایسے مقام پر آ جاتے ہیں کہ جو کچھ لوگ آپ میں اتارتے ہیں آپ اس پر قناعت نہیں کرتے، آپ لوگوں کے بتائے ہوئے پر قناعت نہیں کرتے اور پوچھتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔ آپ ایسے مقام پر آتے ہیں جہاں نہ صرف آپ کھانا بلکہ بہترین طلب کرتے اور خود کو خوراک دینا چاہتے ہیں، آپ شاگرد بننا چاہتے ہیں۔ یسوع نے اپنے شاگرد عظیم میں ہمیں قوموں میں جانے کا حکم دیا۔ اس نے ایماندار بنانے کا حکم نہیں بلکہ شاگرد بنانے کا حکم دیا ہے۔ اور بعض لوگ کسی نہ کسی طرح مسیح کے ساتھ چلنے کے 3-4 سال بعد شاگردی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ طویل مدت کی سپردگی ہے جو آپ کی ساری زندگی پر محیط ہے کہ شاگرد رہیں، لیکن ہمارے پاس شاگرد رہنے والے زیادہ نہیں۔ اور اس مضمون پر جو آج میں آپ کو سنانے والی ہوں، جب میں نے خدا سے جتنا بھی پوچھا اتنا ہی اس نے انڈیلنا شروع کیا۔ میں نے خداوند کو بتا دیا کہ میں ایسی تعلیم پر فاتح نہیں، کیونکہ اس میں بڑا تضاد ہے اور میں واقعی نہیں جانتی کہ کس کو مانوں، اور میں تجھے ڈھونڈ رہی ہوں کیونکہ تیرا کلام فرماتا ہے کہ میں تیرے کلام پر بھروسہ کرتا ہوں، اور کلام فرماتا ہے کہ میں اپنے سارے دل سے ڈھونڈوں گی تو پا لوں گی۔ تو فرماتا ہے کہ مانگو، ڈھونڈو اور کھٹکھٹاؤ۔ تو نے مجھے حکم دیا کہ مانگو، یہ حکم ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اے خداوند، میں تیری روح کا دگنا مانگتی ہوں، میں تجھ سے فہم مانگتی ہوں، عقل مانگتی ہوں۔ اور آج کا مضمون ہم نے صرف فضل سے نجات پائی ہے، یا ہم صرف توبہ اور فضل سے ہی نجات پاتے ہیں؟ میں صرف مطالعہ سے ہی اس کی تیاری نہ کر رہی تھی بلکہ ایک عرصے سے دعا بھی کر رہی تھی، کیونکہ میں علم الہیات کتب اور ٹی وی سے یہاں وہاں ادھر ادھر سے کچھ ملے جلے سے پیغامات مل رہے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کے لیے حوالے پڑھنے شروع کروں، میں بتانا چاہتی ہوں کہ متن کے مطابق کیسے پڑھا جاتا ہے۔ متن کے مطابق پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ جب ہم بائبل کو خدا کا کلام سمجھتے ہیں، اسے باب میں پڑھنے کا مطلب متن میں پڑھنا نہیں، کیونکہ جب بائبل لکھی گئی تو ابواب اور اعداد کی تقسیم نہ تھی، بالکل بھی نہ تھی۔ متن کے مطابق پڑھنے کا مطلب
तमाम कलाम को मतन बनाना है। आप एक आयत लेकर उसे तमाम कलाम के मतन में पढ़ते और समझते और वजाहतें करते हैं। जी हाँ, ये मतन में पढ़ना है। जब मैं नजात के लिए फजल और तौबा पर आती हूं तो ये अल्फाज सुने। जी हाँ, सुनिए। फिर हम सुनाने और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई सिर्फ फजल और तौबा से नजात पा सकता है। यिर्मयाह 18:8 फरमाता है, अगर वो कौम जिसके हक में मैंने ये कहा अपनी बुराई से बाज आए तो मैं भी उस बदी से जो मैंने उस पर लाने का इरादा किया था बाज आऊंगा। और आज ये अमेरिका पर सादिक आता है। यिर्मयाह 34:15 और आज ही के दिन तुम रजू लाए और वही किया जो मेरी नजर में भला है, कि हर एक ने अपने हमसाया को आजादी का मुजदा दिया और तुमने उस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है अहद बांधा। हिजकियेल 18:30। बस खुदावंद खुदा फरमाता है, ए बनी इसराइल, मैं हर एक की रविश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा। तौबा करो और अपने गुनाहों से बाज आओ, ताकि बदकरदारी तुम्हारी हलाकत का बायस ना हो। नए अहदनामे की तरफ आते हुए मुकद्दस लूका 5:32। यीशु सुर्ख हरूफ में बोलता है, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं। लूका 13:5। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। लूका 15:7। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। इमाल 2:38। पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम उसमें से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। 2 कुरिन्थियों 7:10। खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है, और उससे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। 2 पतरस 3:9। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। रोमियो 10:9। अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो नजात पाएगा। रोमियो 10:10। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। रोमियो 10:13। रोमियो 10:13 में यूं मरकूम है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा। इफिसियों 2:8। क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना इमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। बस ये कौन सा है? ऐसे सहायफ भी हैं जो इफिसियों 2:8 की तरह कहते हैं कि तुम्हें ईमान के वसीले फजल से, ना कि ईमाल से नजात मिली है। लेकिन दूसरी जगह लिखा है कि जब उन्होंने पतरस से पूछा कि क्या करे कि नजात पाए, और उसने फरमाया कि तौबा करो और बपतिस्मा लो तो नजात पाओगे। और जब मैं खुदावंद से उसके मुतालिक पूछ रही थी, क्योंकि एक ये कहता है और दूसरा वो, तो फिर खुदा ने मेरे जहन को खोला ताकि समझूं, और उसने फरमाया, इस मतन में से पढ़ो। जब तुम खुदा के कलाम के मुकम्मल मतन के साथ पढ़ती हो तो वो ये या वो नहीं होते, बल्कि वो एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। बस तुम्हें सिर्फ फजल ही से नजात नहीं मिलती, बल्कि तुम्हें फजल से तौबा
तौबा के वसीले से नजात मिली है, तुम्हारे ईमान से। आपको पता है कि वो ईमान क्या है? वो ईमान ये है कि तुम एक गुनाहगार हो और तुम खुद को नहीं बचा सकते, क्योंकि तुम खुद नजात नहीं पा सकते, बल्कि नजात के लिए तुम्हें खुदा की कुव्वत दरकार है। वो ईमान खुद ब खुद तौबा पैदा करता है ताकि खुदा को कबूल करो। उस ईमान के बगैर तुम्हें खुदा का फजल हासिल नहीं होता। मुझे ये कहने दे, मेरे साथ बर्दाश्त करें, ये आपके दिमाग को उलझा देगा, ये आपको उलझाएगा। खुदा मोहब्बत है, लेकिन अगर खुदा की गैर मशरूत मोहब्बत हर चीज बदल सकती है, तो दुनिया आज जिस मकाम पर है वहां ना होती। बस खुदा की मोहब्बत आपके कबूल करने तक नहीं करती। एक देने और एक लेने वाला होता है। आपका ईमान उसकी मोहब्बत को कबूल करता है। ये एक चुनाव है, एक फैसला है। आप ईमान रखने का फैसला करते हैं और उसकी मोहब्बत लेते हैं। और अगर खुदा की मोहब्बत हर किसी को तब्दील करती है, हर एक को तब्दील करती है, तो वो आज दुनिया को बदल देता और वो इस मकाम पर ना होती। लेकिन होता ये है कि आप बतौर गुनाहगार होते हुए फजल से उसके पास जाकर कहते हैं, मुझे तेरे फजल की जरूरत है। क्योंकि अगर आप कामिल होते और गुनाहगार ना होते तो आपको फजल क्यों दरकार होता? आपको जरूरत नहीं, खुदा की जरूरत ना होती। यीशु ने फरमाया कि मैं तंदुरुस्तों के लिए नहीं बल्कि बीमारों के लिए आया हूं। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि वो गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है, उसने फरमाया कि वो तंदुरुस्तों के लिए नहीं बल्कि बीमारों के लिए आया है। आपको इलाज करवाने की खातिर दवाई खाने के लिए कहना पड़ता है कि मैं बीमार हूं, मुझे मदद चाहिए, मैं बीमार नहीं रहना चाहता। और यही तौबा है। नजात के वक्त आप खुदा की कुव्वत का कैसे इनकार कर सकते हैं? आप जानते हैं कि ये क्यों बुखारात बनकर फजल का इल्मे इलाहियात बन जाता है? जब आप नजात के तजुर्बे में खुदा की फौकुल फितरत का इनकार करते हैं, क्योंकि ये ईमान रखते हुए वो आपके जहन में नहीं होता, किताबों से नहीं होता, बल्कि आप ईमान रखते हैं कि खुदा की फौकुल फितरत कुव्वत आप में काम करती है। नजात एक फौकुल फितरत तजुर्बा है। आप अपने बेटे या बेटी को नहीं बचा सकते, आप पड़ोसी को नहीं बचा सकते, आप अपने अजीजों को बिल्कुल भी नहीं बचा सकते। बस आप पैगाम देने का वसीला बन सकते हैं। बाकी का काम खुदा करेगा कि वो ईमान लाए और कहे कि मैं गुनहगार हूं, मुझे यीशु मसीह के खून की जरूरत है कि मेरे गुनाहों की गंदगी साफ करे। क्योंकि जिस तरह मैंने अपनी जिंदगी गुजारी, मैं उसे बदलना चाहता हूं और कबूल करता हूं कि मुझ में तब्दील होने की कुव्वत नहीं, मुझे खुद को बचाने की कुव्वत नहीं। इसलिए मैं खुदा के पास आया हूं। ऐ खुदा मेरी मदद कर, खुदाया मेरी मदद कर, क्योंकि मुझ में कुव्वत नहीं। नजात के तजुर्बे में खुदा का मुकाशफा काम करता है और खुदा का मुकाशफा खुदा की हुजूरी है। सुने, जब मैंने नजात पाई, जिस दिन मैंने अपना आप, अपना दिल, अपनी जिंदगी यीशु को दी, तो मैंने उस वक्त नजरिया तसलीस को ना समझा। मैं बाप, बेटा और रुल कुद्स के नजरिया को ना समझी। मैं बहुत सी चीजें ना समझी। लेकिन जिस दिन मैंने जाना कि खुदा है और मैं गुनाहगार हूं और मुझे खुदा की मदद और उसकी कुदरत की जरूरत है ताकि अपनी गंदगी साफ करूं। मैं एक बुनियाद परस्त मुस्लिम थी। मैं अल्लाह की राह में जान दे और ले सकती थी। लेकिन जिस दिन मैं तौबा के वसीला तब्दील शुदा इंसान बनी, मैंने अपना दिल यीशु मसीह को दे दिया। मैं फिर किसी को ना तो कत्ल और ना ही तकलीफ पहुंचा सकती थी। आपको पता है क्यों? मैं फर्श पर सर रखे अपने गुनाहों पर और अपने माजी के गलत कामों पर ज़ारो कतार रो रही थी। मैं अपनी जिंदगी के हर शोबा में नाकाम थी।
میں بطور مسلم ناکام رہی۔ میں بطور مسلم ناکام رہی، بطور عورت ناکام رہی۔ میں بیٹی اور ماں کی حیثیت سے ناکام تھی، اور یہ میری نجات کی وہ گھڑی تھی، یہ وہ گھڑی تھی جب میں توبہ کے وسیلے اپنی ناکامیوں اور غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے خدا کی طرف رجوع لائی۔ اور آپ کو کیسے جرأت ہوئی کہ کہیں اوہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں کہ نجات اعمال سے نہیں، اور میں اس سے بالکل متفق ہوں۔ مگر جیسے ہی آپ توبہ کو اعمال سمجھتے ہیں تو پھر غلطی کرتے ہیں، کیونکہ توبہ اعمال میں سے ایک نہیں۔ توبہ نجات کے وقت قدرتی طور پر پیدا ہونے والا پھل ہے، کیونکہ آپ خدا کے بغیر اپنی قابل رحم گناہ کی حالت زار کو تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کو اس کے فضل کی ضرورت ہے، اور اس لمحے یہ آپ کو مفت تحفہ دیا جاتا ہے۔ آپ کو یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ تسلیم کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں، اور اس کا خون آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر آپ کامل ہیں تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے گناہ نہیں کیا تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں، مگر مستقبل میں اس چیز کو پانے کے لائق بننے کے لیے جس کا خدا نے آپ سے وعدہ کیا، آپ کو ماننا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں مسلم ہوتے ہوئے ایک مسیحی کمپنی میں کام کرتی تھی اور میں گناہ کر رہی تھی، میں جنسی طور پر ناجائز تعلق رکھتی تھی اور دوسرے مردوں کے ساتھ سونے والی عزت نفس سے محروم اور بے قدر تھی۔ اور دیکھیں، میں سوچتی کہ میں اللہ کے کام کی نہیں، میں یسوع کے کام کی نہیں، کسی کے کام کی نہیں، اور بطور مسلم میں ناکام تھی۔ اور مجھے اپنا بھلا مسیحی باس یاد ہے جس نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور پوچھا، عشق تم کیوں ایسی دکھتی ہو؟ تم ٹھیک نہیں دکھتی۔ مقدس یسایہ کی کتاب کہتی ہے کہ ان کے چہرے ان کے خلاف گواہ ہیں۔ ان کے چہرے، کوئی اندھیرے میں چل رہا ہے، میں اس شخص کے چہرے میں دیکھتی ہوں۔ کبھی آپ کے بچوں کے چہرے میں دیکھتی ہوں۔ آپ اپنی بیٹی کو، میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں، آپ اپنے بچوں کے چہرے بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ آپ کو قائل کرنے کے لیے کتنے بہانے لگاتے ہیں۔ ماں ہوتے ہوئے آپ چہرہ دیکھ کر جان لیتی ہیں کہ وہ آپ سے ضرور کچھ چھپا رہے ہیں۔ اور مرد خدا ہوتے ہوئے میرے باس نے میرے چہرے کو دیکھ کر کہا، تمہارے چہرے میں عشق کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اور میں نے بس اس شخص پر اپنی جان انڈیلتے ہوئے اسے اپنے سب گناہ بتا دیے جو کام پر آنے سے ایک رات پہلے میں نے کیے۔ اس نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں غلط راہ پر ہوں، اور میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں درست کام کر رہی ہوں، کیونکہ اپنے خدا کو خوش کرنے کی بڑی دیر سے کوشش کر رہی تھی لیکن کام نہ آیا، اور اب بری بنی ہوں تو یہ میرے کام آ رہا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا، لیکن اس کے چہرے پر کڑوی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، تم بہت خراب عورت ہو۔ میں بڑی ناراض ہوئی، یہاں تک کہ کام چھوڑ دیتی، لیکن تنہا ماں کو پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن میں اتنی مغرور تھی کہ اسی لمحے چھوڑ جاتی کہ اس شخص کو مجھے خراب عورت کہنے کی جرت کیسے ہوئی۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ سچائی آپ کو آزاد لیکن ناراض بھی کرتی ہے۔ میں خوش ہوں کہ یسوع مسیح کا نام میرے لیے آزاد تھا۔ ایک دن مجھے اس آزاد پر نظر کر کے فیصلہ کرنا تھا۔ اس دن
میں बॉस से बड़ी नफरत करते हुए घर गई और मुंह धोते हुए मैंने अपने चेहरे को आईने में देखा और मैंने एक खराब औरत को देखा। मैं रोई और ज़ारो कतार रोई और मैंने खुद से कहा, हाँ, मैं खराब औरत हूं। कुछ अरसे बाद मुझे खुदा की हुजूरी महसूस करनी थी। मुझे यीशु मसीह के गले लगाने वाले बाजू महसूस करने थे ताकि अपनी जिंदगी उसके हवाले करने से पहले खराबी का एहसास कि मैं खला के अंधेरे में तैर रही हूं और मेरे दिल में खुदा की हुजूरी के बगैर रहने के खौफ का एहसास हुआ। खुदा की हुजूरी का बेहद एहसास हुआ क्योंकि किसी तरह मुझे अपनी जिंदगी उसके हवाले करना थी। आपका ऐसे मकाम पर आना अच्छी बात है क्योंकि वहां यीशु हर किसी के लिए दस्तयाब है और खुदकुशी पर उकसाने के लिए दुश्मन भी मेरे करीब था। शायद आज आप ये प्रोग्राम सुन रहे हो, आप ये पैगाम देख रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं ढूंढने या मैं मायूस कुन मकाम पर हूं। खुदकुशी की वजह मायूसी है। आपको कोई मुश्किल है और आपके ख्याल में उसे कोई नहीं सुलझा सकता। आपको कोई उम्मीद नहीं और ठीक उसी लम्हे वहां खुदा आपको बताता है कि उसके वसीले से उम्मीद है। और मुझे भी ऐसे मकाम पर आकर कहना पड़ा कि मैं खोई हुई हूं, मुझे मदद चाहिए। ये लम्हा मेरे दोस्तों तौबा का है। पता है कि ये यहाँ खत्म ना हुआ क्योंकि यीशु मसीह के साथ मेरे सफर के पहले 2 साल महज मजाक थे। इसलिए हर मर्तबा फेल हुई, मैं फेल होती फिर खड़ी हुई और ऐसे होता रहा। अब भी मैं ज़ेरे तामीर हूँ और मुझे बार बार उसके पास और फिर उसके पास लौटकर कहना पड़ा है, खुदावंद मुझे अफसोस है। शायद आज मैंने जो गुनाह किया वो मेरे दिल में वाज़ा ना हो, लेकिन मुझे उसके पास जाकर कहने की जरूरत है कि मुझे साफ करे। क्यों तौबा करना, अपनी राहों से मुड़ना, जहन को तब्दील करना और बेरा रवि पर अफसोस करना आपके लिए क्यों नाराजगी का बायस है? तौबा का पैगाम क्यों आपके लिए नाराजगी है? तौबा के मुतल्लिक क्या आप चुबाया हजम नहीं कर सकते? पता है उसके पीछे क्या है? मुझे बताने दे। ये गरूर है। गरूर तौबा करना और गुनाह को तस्लीम करना नहीं चाहता। गरूर दूसरों को इल्जाम देता है और नहीं चाहता कि आप आजाद होने के लिए खुदा का फजल पाए। ये खालिस गरूर है और मुझे गरूर से नफरत है। मुझे गरूर से बेहद नफरत है और मुझे उसे बार मसलूब करना पड़ा और अब भी ये साम की तरह फन उठाता रहता है। मुझे कहना पड़ता है कि ये मेरा गरूर है और मैं इसे मसलूब करना चाहती हूँ। और ये तौबा है जिसके जिक्र से चर्च में नफरत है। हमें इस पर बात करने से नफरत है। हम मस्बा पर ये कहने से नफरत करते हैं कि 70% मर्द उरिया फिल्मों और जिनसी बेरा रवि के बेहद आदी हैं। तौबा करें, फिर हम इंतजार करते हैं मस्बा पर आकर साफ हो। लेकिन हम लोग हर इतवार को चर्च में अपनी आरामदेह कुर्सियों पर बैठे खुदा का कलाम सुनते और हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि तब्दील हो। तब्दीली दानिस्ता और बढ़ोती दानिस्ता होती है और ये सिर्फ यूं कहने से नहीं होती। ओह, मुझे मसीह के साथ चलते हुए 20 साल हो गए हैं, मैं कुदरती तौर पर बदला हूं। बदलना, हाँ, ये एक अमल है, लेकिन ये दानिस्ता और एक काम है। और यहाँ आप हमेशा इफिसियों 2:8 का हवाला देते हैं, लेकिन बाकी सब छोड़ देते हैं क्योंकि हम उसे मतन में नहीं पढ़ते। वो फरमाती है, ना अमाल के सबब से ताकि कोई फख्र ना करे, लेकिन 10 में क्योंकि हम उसकी कारीगरी और मसीह यीशु में नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए। आप यीशु के लिए कैसे नेक अमाल करेंगे
जब आप उड़िया फिल्मों के लिए अपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और आप कैसे यीशु मसीह के लिए अच्छे काम कर सकते हैं जबकि आप उड़िया फिल्म देखते हैं और एफ बमों के उड़ते हुए आप दावा करते हैं कि आपके पास रूल कुद्स है। यीशु मसीह आपके साथ बैठता है और आपको कोई असर नहीं और ना ही कोई शर्म, कोई एहसास जुर्म नहीं कि आपने अपने अंदर दुनिया को घुसने दिया। आपको पता है क्यों? हम चर्च में बैठे हुए सो रहे होते हैं और हम देखते हैं कि मसीह के साथ 20, 30, 40 साल चलने वाले अब भी वो तमाम लोग डायपर्स पहने हुए हैं। वो अपने डायपर्स उतारना नहीं चाहते। आज इन्हें तरबियत दरकार है। हो सकता है कि आप इब्तदाई तालीम पाते हो, आपको मिडिल, फिर हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट और फिर ग्रेजुएट के मकाम तक आना है और ये भी सिर्फ तौबा से हो सकता है। आप अपनी दुनियावी राहों पर दुख करते और पशेमान होते हैं और आपको पता है कि आप यशुआ की तरह फैसला करते हैं कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, मैं खुदा की इबादत करूंगा और आज खुदा के लिए अपनी जिंदगियों को तब्दील करने के लिए उसकी तब्दील करने वाली ताकत से ये फैसला करना होगा कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, मैं खुदावन की खिदमत करूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं कि लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, मुझे दुनिया की परवाह नहीं। और आज शायद आप महसूस करते हो, जी हाँ, आप महसूस करते हो और आप ये महसूस करते हैं कि आप बहुत मर्तबा फेल हुए हैं। मैंने सुना है कि इंसान बहुत मर्तबा फेल हो सकता है, लेकिन जब तक हार ना मान ले फेल नहीं होता। इंसान बहुत मर्तबा फेल होकर भी नाकाम नहीं होता जब तक जी ना छोड़े। आज खुदा आपको सच्चाई की तरफ बुलाता है। जी हाँ, यीशु मसीह पर ईमान रखें और जाने कि वो पाक खुदा है, कामिल खुदा है। वो चाहता है कि आप उसकी मानिंद हो। आपको उसकी मानिंद बनने के लिए तौबा करके अपनी गुज़श्ता राहें छोड़कर अपनी जिंदगी उसके हवाले करें और फिर उसी लम्हे खुदा का भेद आप पर, उसकी ताकत और उसका फजल आप पर नासिल करेगा और उसकी शिबाहियत में तब्दील करेगा। खुदा आपको बरकत दे।